पढ़ने वाले हैं, या फिर आज हम लोग इस कॉटलिन सीरीज में क्या सीखने वाले हैं? हम लोग ये सीखेंगे कॉटलिन के अंदर कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे काम कैसे करते हैं, how we can work over abstract classes, or how we can work on abstract classes. We have to learn about it. Okay, so the original concept is to is to understand inheritance between classes. Okay, the main concept is how we can inherit a particular class property to another. हम लोगों को ये समझना है इसके अंदर कि आखिर ये जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस, वामसी, हैव यू नो अबाउट इनहेरिटेंस? So what is inheritance? I am asking about the inheritance. Na? सुशांत, इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या चीज? हाँ बताइए। ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हो। चलो एक बेसिक से लेआउट से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। So let's suppose that we have a particular class available into our section. We have a class. We have a class, already defined a class, or we have an existing class, and we just need to transfer, or we have to just use whatever the functions are using or declaring into this class. We are using the same functions into another class. Okay, so for that thing, what exactly we are using? We are inherit all the properties. We are just inherit all the properties from this above class or from the next abstract class to this lower class. Is it clear? Vamsi, is it clear? So into, yeah, if we need to transfer a property, we need to transfer the properties from an abstract class. Please remind this. Please take this a note that I am saying that inheritance will always be possible from an abstract class only. Okay, you cannot go with some kind of classes which are normal classes or which are child classes. You cannot do the inheritance between those classes. You will, for the inheritance concept, or for the concept of inheritance, it is required that we must have an abstract class into a frame. Is it clear? सुशांत, क्लियर हुआ? ओम प्रकाश जी, क्लियर हुआ पार्ट आपको? ओके, सो अब कंडीशन क्या होगी हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए? सो कंडीशन ये होगी कि हमारे पास में सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। सो द कंडीशन इज दैट वी मस्ट हैव an abstract class within our code. We must have an abstract class to work with on. So to create an abstract class, or to justify it that it is open for inheritance and so on, we have to use a keyword named as open. Okay, अगर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, या हमें ये डिक्लेयर करना है कि हाँ भाई इस क्लास से आप प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसी क्लासेस को बनाने के लिए हमें ओपन कीवर्ड का यूज करना होता है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? let me make it simple. So let's suppose why we are using final. Why we are using final? To make a variable static,
or to make a variable by to set a default value into a particular variable, that's why we are using final. Vamsi, yes or no? यस ओके। ओम प्रकाश जी वाली बात क्लियर है अभी? मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ अभी कि फाइनल जो होता है वो डिफ़ॉल्ट किसी भी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए होता है ना? ये वाली बात क्लियर हो रही है सिद्धांत? ये वाली बात क्लियर हो रही है? जिस तरीके से फाइनल को वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए रखा जाता है, यानी कि अगर आपको कभी भी कोई किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट करनी है तो आपको फाइनल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना? उसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्लास इनहेरिटेड बनानी है, कोई भी क्लास इनहेरिटेबल बनानी है, फॉर दैट थिंग यू ऑलवेज हैव टू यूज ओपन। इफ यू नीड टू मेक अ क्लास इनहेरिटेड, to make a class inheritable, you have to use open keyword before declaring a class. Is it clear, Vamsi? Okay. So how exactly we have to go with that part? So let's take an example. So what exactly we are going to discuss into this example? We have a specified class. First of all, we have to create a class named as which may be an abstract class or which will be inheritable into nature, and then we will use that thing, or we will use that abstract class into another classes, or to make another classes to define some kind of things. Okay, so let's start with this thing. Let's start. So let's take an example of animal. Let's take an example of animal. So we are creating an abstract class with the name of animal, and we will declaring a specified function into that animal abstract class. Then we will call that specified function into another class by inherited, or by call them into that part, or by overriding the functions. So how exactly we are going to do this? First of all, we have to create an abstract class into a feature. To create an abstract class, first of all, we have to use open. Or let's suppose if I write class animal directly. If I write class animal directly, so what exactly happened? This class will not transfer the properties, or its properties to another classes, or it will not become an inheritable class. अगर हमने डायरेक्टली क्लास एनिमल ऐसा लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्लास एनिमल ऐसा लिख दिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक नॉर्मल क्लास की राइट करेगी, इनहेरिटेबल क्लास नहीं बन पाएगी। तो इनहेरिटेबल क्लास बनाने के लिए, टू मेक इट इनहेरिटेबल, वी हैव टू यूज ओपन कीवर्ड, वी हैव टू यूज ओपन बिफोर दिस क्लास। कितनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? सुशांत? Now we have to declare some kind of function within this inheritable class. So for example, I am using fun, and let's suppose I am using a function named as eat, and within this I am just printing a line. I am just printing a line that this animal eats fruit. Eats fruit. Like this. Is it clear? So this becomes our inheritable class, or this becomes our abstract class. Okay. Now let's do an example. Let's go with this part. हाँ बताओ। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको
देखो अलग अलग मेथड्स में, ये मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उस पर काम करना है, क्या बोलते हैं, अगर आप जावा पे काम कर रहे हो तो आप अलग तरीके से लिख रहे हो, आप कॉटलिन पे काम कर रहे हो आप अलग तरीके से, मतलब काम हम वही कर रहे हैं, बना हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रहे हैं, इनहेरिटेबल क्लासेस बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लिखने, कॉटलिन में एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप डार्ट भी पढ़ोगे ना, अगर आप मतलब फ्लटर में जाते हो डार्ट पढ़ते हो, डार्ट में भी यू विल फेस दिस दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बात समझ में आई? तो यहाँ पे फर्क किस चीज़ का है, यहाँ पे फर्क कंसेप्ट सेम है, हम हर जगह एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर हम लोग अलग अलग जगहों पे जो जो अलग अलग हमारे पास लैंग्वेजेस है, उनकी जो सिंटेक्स है, जो लिखने का तरीका है, वो चेंज हो गया है इसका। ये वाली बात समझ में आ रही है सब बात? ठीक है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं, ये बात ठीक है, उधर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, यहाँ पे ओपन लिख रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बताओ? और कुछ इसमें पूछना है अभी, या डाउट तुम्हारा अभी क्लियर नहीं हुआ है? बताओ जरा मुझे। क्लियर हो गया? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको हमें डिस्कस नहीं, एग्जैक्टली इसको अभी डिस्कस नहीं करना है। सो लेट्स गो विद अनदर फाइल। सो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना के रेडी करूँगा। लेट्स सपोज माय न्यू क्लास, and into this my new class I'm just use open, and then I'm using class, and then I'm using animal, like this. Okay? As I mentioned into the whiteboard, that we have to create an abstract class or we have to create an inheritable class. So this is how we can create an inheritable class. I'm just using open class animal, like this. Now I have to use a function that is eat, and within this function we will write print 9. This animal. सो ये हमारी इनहेरिटेबल क्लास बन गई है, एनिमल नाम से इनहेरिटेबल क्लास ही बन के रेडी हो गई है। और नाउ वी हैव टू क्रिएट some more classes so that we can inherit the properties of this animal class. So to inherit, to inherit the properties from a particular class to from an abstract class to a particular class, we have to use a concept named as extents. We have to use a keyword named as extents. So Vamsi, have you know about extent? Okay. ओम प्रकाश जी, extend का मतलब मालूम है? extend का मतलब क्या होता है? ठीक है। सिद्धांत, extend का मतलब? हाँ, क्या मतलब होता है extend का? हाँ हाँ, गुड। देखिए, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को एक्सटेंड बोलते हैं। तो जब भी आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डेटा को निकाल के या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से प्रॉपर्टीज को निकाल के अपने क्लास में लेके आते हैं, इस कंसेप्ट को हम एक्सटेंड बोलते हैं। ठीक है,
इनहेरिटेंस के अंदर एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अपने किसी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड जो कीवर्ड है, इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है या इसका जो एग्जैक्ट मोटिव है वो ये होता है कि क्लास जब बन रही है तो क्लास के दौरान दूसरी क्लासेस से भी ये डेटा को, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको फेच कर सके। ओम प्रकाश जी, क्लियर हुआ है? ठीक है। So Vamsi, what exactly extends is that extends is the concept of inheritance. It comes under inheritance, into which whenever we need to create a specified class by using the same properties as given into that abstract class. So we use extends, or we use extend keyword to just transfer or to inherit all the properties from the abstract class to the given class. Is it clear, Vamsi? Okay. So how exactly we have to denote that extend? Extends is denoted by colon sign. Okay. Extends is denoted by colon sign. So for example, if you have to create a specified class, let's suppose I am creating a class named as dog. Okay. And I need to access all the properties of this animal class. So for that thing, how exactly I am going to extend? I just use this colon keyword, colon like this, and then I have to write the name of that abstract class, that is animal, like this. Is it clear? Now let's suppose if we need to create some function as well for the relative class, we can go with that part. For example, I am creating a function named as bar, and I am writing println that dog barks, like this. Okay. So what will happen into this part? Whenever my user calls this class named as dog as a with the help of an object, and if it is need to call that function named as bark, so it will performs print line dog bark. But if you will see that we don't have a function eat, so we don't have to. It is not required to just to write it here, or to write the original part here. You just have to call it because it is inherited from the animal class. You just have to call it. It will directly perform without any declaration at that point. So यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, जब हम डॉग यहाँ नाम की जो हम क्लास हमें बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जब भी इनहेरिट कर रहे हैं कंसेप्ट को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू आवर क्लास, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, एक्सटेंड को यूज़ किया है, दैट इज द कॉलन साइन। और जिस क्लास को हमें एक्सटेंड करना है, जिस क्लास से हमें डेटा को लेके आना है, उसका नाम है एनिमल। और इसके थ्रू हमने क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन तो हम लोग अपना बना रहे हैं और एक फंक्शन हम लोग एनिमल से लेके आ रहे हैं, एनिमल वाली क्लास से लेके आ रहे हैं। सो लेट्स do this thing. So I am creating a class named as dog, and I am extending this function, extending the properties of the abstract classes by using animal like this. Okay. So यहाँ पे ये हमारी क्लास आ चुकी है, अभी कुछ बोल रहा है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आ चुका है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्दर हम यहाँ पे अपना फंक्शन मार्क कर रहे हैं, अपना फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि हम लोग ये देख सके कि एनिमल से हमने क्या निकाला था, एनिमल वाली क्लास से हमने क्या निकाला था, और इस वाली ये जो हमने क्लास बनाई इससे हमने क्या निकाला। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिया, लेट्स सपोज साउंड नाम से हमने फंक्शन लिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट लाइन डॉग बार्क्स, ऐसा करके हमने डाल दिया। ठीक है। सो क्या हुआ है, ऊपर इधर हमने बनाई इनहेरिटेबल क्लास, और इस इनहेरिटेबल क्लास का यूज करते हुए हमने बनाया है एक नॉर्मल क्लास इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नॉर्मल क्लास को हमें कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन मेन बनाएंगे। वी हैव टू कॉल दिस स्पेसिफाइड क्लास विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इट, we have to write like this, and we have to declare an object at first,
So for that thing, I'm using well, and let's suppose the name of it is dog is equals to. Then we have to use the name of class, that is dog, along with the parenthesis sign. That means the constructor. Okay. Now we have an object named as dog. We have to call all the properties from these number of classes with the help of this object. So अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने मेन फंक्शन हम लोगों ने बनाया है. इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना के रेडी किया है, दैट इज डॉग. ठीक है. और उसके अंदर हम लोगों ने किस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, डॉग क्लास जो हमने ऊपर दी थी उसका ही हमने ऑब्जेक्ट बना के रेडी किया है विद द नेम डॉग. अब हमें क्या करना है, इसी डॉग फंक्शन से, इसी डॉग ऑब्जेक्ट से हमें जितने भी हमारे पास में क्लासेस थी उन सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग डॉट साउंड इसको यूज किया. सो आई जस्ट यूज एन ऑब्जेक्ट डॉग एंड देन आई कॉल द फंक्शन नेम्ड एज साउंड. Similarly, if I inherit all the properties from this animal class, I also have a function named as eat. So named as eat. So we don't have to call it on. We don't have to create one more function named as eat. So we just have to call that function with the help of object like this. Okay, and it's done now. We just have to run it. Once we run it, all the functions will start working. We have to just wait for a moment. Once it's done, we have to move on. Not provides anything to us. Not provides anything to us. We have to do it again. Okay, डॉग डॉट ईट कैसे होगा? ये हमने इनहेरिट किया ना, यहाँ से एनिमल से इनहेरिट किया है. एनिमल किया ना,
मतलब देखिए एक क्लास बनी हुई है, क्लास को डिफाइन करके रखा हुआ है, उसका नेचर डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक क्लास से ही सारी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो एक मेन क्लास बना ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, उससे छोटे छोटे जो भी फंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जिसको जैसा यूज़ करना है वो वैसा यूज़ करता रहेगा इसका। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके पास में पैसे हैं, आपने अपने अपने लोगों को कुछ पैसे दे दिए, अब ये उनके ऊपर होगा कि वो पैसों को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे कौन हो गए, आप वहाँ पे हो गए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जितने भी आप क्लासेस को बांट रहे हो आपकी चाइल्ड क्लास हो, ठीक है ना। ये चीज़ होती है इसकी। इसको एक बार देखना पड़ेगा मुझे, मे बी देयर इज एन एरर इनटू माय कोड, सो आज इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। नाउ हमें बताओ। हम्म, हाँ देखो ऐसा है, वो चीज़ होगी, पर वो चीज़ कब होगी तुम्हारे पास में, जब आप क्लासेस के अंदर अलग अलग तरीके से काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे उस केस में ओवरराइडिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपने साउंड भी लगा दिया, फन साउंड आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। और आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया दैट एनिमल साउंड्स, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मैंने लाइन गलत लिखी है, ये मुझे लग रहा है इसमें गलत शब्द है कुछ। चलो देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब क्या करना है फॉर दैट थिंग, वामसी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड that we are declaring another function named as sound, okay, and I am just removing this sound function from this part like this. What exactly I need, I have to use this sound. I have multiple classes. Let's suppose there's a class named as dog, there's another class named as cat, okay. I also extend it like this. Now we have two different classes, one is dog, one is cat, okay. And I am declaring or I am inheriting all the properties from the animal class, from the animal abstract class. So now what exactly I have to do, what exactly I have to mention or I have to do to use this sound for dog and cat differently. Okay, for that thing we have to use override method. Okay, for that thing we have to use override. So what exactly overriding is, overriding a method or overriding a function means that it is, we are receiving the specified function, we are receiving the specified function from the abstract class, but we are going to change the behavior of that function, or if we need to change the behavior or need to change the workflow of that function, we have to use override. सो लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक और फंक्शन अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर साउंड नाम से बना लिया है। नाउ मेरे पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक है डॉग नाम से, एक है कैट नाम से, और मैं दोनों को यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डॉग बाग्स तो कैट भी बाग कर रही है, या कैट म्याउस तो डॉग भी म्याउस कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉग अपनी भाषा बोलेगा, कैट अपनी भाषा, मतलब क्लासेस के अंदर नेचर अलग अलग होना चाहिए हमारे पास। फॉर दैट थिंग हमने क्या किया कि एनिमल क्लास से, एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमने डेटा इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया डेटा, और हमने डेटा का जो नेचर था, जो फंक्शन का नेचर था, उसको चेंज करना है। कि फंक्शन का नेचर कैसे चेंज करना है कि जब वो मेरे पास में कॉल हो, तो जब मैं डॉग को कॉल करूँ तो वो बाक्स लिखा है, और जो कैट को कॉल करूँ तो वो म्याउस लिखा है। फॉर दैट थिंग हम यहाँ पे ओवरराइड का यूज़ करते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, ओवरराइडिंग वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ओम प्रकाश जी, ओवरराइडिंग वाला पार्ट क्लियर हुआ? वामसी, इज इट क्लियर? ओवरराइडिंग का फंक्शन ओके, कैसे करते हैं इसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास फंक्शन क्या है, साउंड नाम से मेरे पास फंक्शन आया है, मेरे पास साउंड नाम से फंक्शन आया है। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर लिखना है प्रिंट लाइन डॉग बार्क्स, ऐसे। पर अगर आप नोटिस करेंगे, इफ यू विल नोटिस दैट वी आर गेटिंग एरर इनटू दिस साउंड पार्ट,
Why we are getting here? Why we are getting error into this? Because it is already declared into animal class, and because we are inheriting the properties, so it will clashes or it will become clashes. The same name are available on both sides. That's why it provides us an error. To counter the error as well as to change the nature, for both things we are use override method. So I just have to use override like this, and once I'll override, it shows me an error for overriding. Make animal dot sound open. Okay, I have to open that function as well. Okay. So हमारे पास में पहले एरर क्यों आ रही थी? रीज़न ये था कि हमारे पास में दोनों तरफ साउंड लिखा हुआ था, और दोनों तरफ क्योंकि हमारे पास एनिमल इनहेरिटेबल क्लास है, तो ये क्लैश कर रहे थे नाम आपस में। सो मैंने क्या किया, ये बताया कि नहीं भाई, हम नया कुछ नाम नहीं बता रहे हैं, आपका जो नाम है, आपका जो फंक्शन है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, पर उसको अपनी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पे ओवरराइड का यूज़ करते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? सिद्धांत क्लियर हो गया है? Vamsi, is it clear? So we have two different parts like this, and we are now going to. So this is how dog dot sound. Similarly, I have to create another object, that is, let's suppose cat is equals to cat. Into this, I have to use cat dot eat and cat dot sound. Like this. Let's understand that whether it is working or not. Yeah, perfect. So here you will see that we have a part that this animal eat foods, dog barks. Similarly, this animal eat foods, cat meows. Okay. ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताइए एक बार। Vamsi, is it clear? Okay. So I have some questions for you. आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे मार्क करते रहूँ, आप लोग देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? करके देखिए क्वेश्चन वाले। क्लियर है बातें? इसमें अभी इंटरफेस वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा। ठीक है? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको एक कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड और थर्ड कल करेगा। ठीक है?